Jai Hind. Hello friends, in this video we will going to discuss a complete notes on Minimata disease. It is really basic to advance because everything everything in this video and in these notes, basically on these notes we will see about it. Okay, so let us begin with the Minimata disease and we will see complete notes for BSc बॉटनी और जूलॉजी. ठीक है, सेमेस्टर 4 में जो है बीएससी में सेमेस्टर 4 का जेनरिक जो सब्जेक्ट है उसमें उसका ये बेस्ट नोट है. या इससे पहले अगर आप कोई जो आप बेसिक चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट चीज़ है. ठीक है, क्योंकि इसमें सारा डिटेल में बताया गया है. नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं. मिनीमाटा डिजीज़ complete notes. Okay, now what is Minimata disease? The first question should be, what is Minimata disease? The Minimata disease is a condition that people in the most part of the world are not familiar with, but it is a painfully real to those living in the city of Minimata in Japan. It means it is a disease when people were not familiar with, but it is very painful. Okay, and the people living in the city of Minamata, that is Japan. The city lends its name to the condition that was first identified here. ये city में इसका नाम इसलिए रखा गया because in this city it disease was first identified here. Okay, next one, Minimata disease is not a disease. Minimata disease is not really a disease in the strict sense of the word. It is a neurological syndrome that results from the industrial pollution and environmental contamination. It is not a disease, it is just a neurological syndrome that results from industrial pollution and environmental contamination. It means the poisoning with the pollutants has an effect on the central nervous system. इसमें ना central nervous system पूरे affect हो जाता था. ठीक है, मिनीमाटा डिजीज में. and the specific pollutant responsible for this disease, okay, या दिस कंडीशन इज मिथाइल मरकरी. एंड ये जो डिजीज़ है ये मिथाइल मरकरी इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल था वहाँ पर, इसलिए मिथाइल मरकरी से ये मिनीमाटा डिजीज़ होता था. ठीक है, द डिजीज़ वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द सिटी ऑफ मिनीमाटा इन 1956. सो हियर इज ऑल्सो क्वेश्चन. ओके, so here is question, what is this? That this disease was identified, first time identified in the city of Minamata in 1956. This is objective question. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ मिनीमाटा डिजीज़. आखिर मिनीमाटा डिजीज़ होता क्यों था उसके बारे में समझिए. ठीक है, बहुत बेस्ट चीज़ समझने जा रहे हैं आप. Minimata disease is caused through the absorption of methyl mercury into the body through various environmental sources, such as primarily through seafood. Okay, so Minimata disease जो था ना वो किसी न किसी तरह से अपना शरीर में मिथाइल मरकरी को अब्जॉर्ब कर लेने की वजह से हो जाता था. चाहे वो कंटामिनेटेड फूड को आप ईट किए या और भी किसी तरह से कंटामिनेटेड वाटर वगैरह पी गए तो. ठीक है, तो प्राइमरली ये होता था ना सी फूड के थ्रू. जो भी सी फूड होते हैं जैसे कि जो फिश खाते हैं वो सब अगर अफेक्टेड है तो निश्चित है हो ही जाएगा. ठीक है, ये डिजीज़. सो द लेवल ऑफ मरकरी इन द बॉडी इज टेस्टेड विथ हेयर. और इसका जो मरकरी का लेवल है वो टेस्ट हेयर से होता था, हेयर सैंपल से. ठीक है, hair sample, and it is widely agreed that when these level are higher than 50 ppm, ppm means parts per million, तो यहाँ पर ना ये हेयर का सैंपल से तो टेस्ट किया जाता था मिनीमाटा डिजीज़ को, और इसमें हाई लेवल का जो बताया जाता था वो 50 ppm तक बताया जाता था. एंड देयर इज़ लाइकली टू बी नर्व डैमेज. व्हेन 50 ppm तक इसका हो जाता सैंपल मिथाइल मरकरी का तो ये नर्व डैमेज का और एक इशारा करता था. ठीक है, while people living in outside of the Minamata area had an average level of 4 ppm. और वैसे लोग जो मिनीमाटा एरिया के बाहर रहते थे उन लोगों में लगभग 4 ppm के आसपास के इनमें कंटामिनेशन था इसका मिनीमाटा का. पीपल लिविंग इन द मिनीमाटा हैड लेवल इवन एज हाई एज 700 ppm. और कुछ ऐसा कंडीशन इतना ख़राब था कि कुछ लोगों को ये 700 ppm तक था मिनीमाटा का इसमें पता हुआ था मिथाइल मरकरी का
ये इसमें लेवल पता हुआ था। ठीक है, ये बहुत द मोस्ट कॉमन सोर्स इज थ्रू कंटामिनेटेड सी फूड एज द केस फॉर पीपल रिसाइडिंग इन द मिनीमाटा। यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन सोर्स क्या था, कंटामिनेटेड फूड, सी फूड था। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अ कंपनी बाय द नेम ऑफ चिज़ो। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, अ कंपनी बाय द नेम ऑफ चिज़ो विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट जापानीज कंपनी एट दैट टाइम। ठीक है, एक कंपनी था उस समय जिसका नाम था चिज़ो, वो पूरे बिगेस्ट कंपनी था जापान में उस समय। 1956 के समय चिज़ो कंपनी जापान का सबसे बड़ा कंपनी था। ओके, इट रिलीज्ड इट्स वेस्ट इनटू द मिनीमाटा बे, और इसका जितने भी वेस्ट था, वेस्ट मटेरियल जो भी था इसका कंपनी का निकलता था, डायरेक्टली मिनीमाटा बे में डाल देता था। मिथाइल मरकरी वाज जस्ट वन ऑफ द pollutants in the waste that was dumped in the particular pollutants accumulated in the food chain। और ये जो था ना, इसका जितने भी कचरा था चीज़ों कंपनी का, ये सब मिनीमाटा का बे में डाल देता था। जैसे मिनीमाटा का क्या था, वो मिनीमाटा के खाड़ी वगैरह में डाल देता था, और ये पूरे के पूरे कंटामिनेट हो जाता था पॉल्यूटेंट्स से। ठीक है, और ये पॉल्यूटेंट्स से कंटामिनेट हो जाने के बाद पूरे सी फूड चेन को पूरे बर्बाद कर देता था। एंड इट वाज अब्जॉर्ब्ड एंड ingested by planktons which is the primary food source for shellfish and fish in the water। और देखिए, अब जो ये चीज़ डाल दिया, मतलब पूरे बे में तो डाल दिया सब कचरा को, जितना भी इसका वेस्ट मटेरियल था चिज़ो कंपनी का, और यही कचरा से अफेक्ट हो गया प्लैंकटन्स लोग। प्लैंकटन्स जब अफेक्ट हुए तो प्लैंकटन्स को खाया फिश, और फिश को खाया इंसान, तो यही मेन इसका फूड चेन को प्रभावित हो गया। ठीक है, तो प्लैंकटन्स फर्स्ट टाइम प्रभावित हुआ, प्लैंकटन्स को फूड खाया, सी फूड जो भी होगा, और मतलब हाँ मछली, और मछली फिश, और वही फिश को हम लोग इंसान लोग खाया जो उस समय था वहाँ पर 1956 में, और वही लोग अफेक्ट हो गए इस डिजीज से। इसके बाद यहाँ पर क्या है, सिम्टम क्या क्या है इसका, सिम्टम एंड साइन ऑफ द मिनीमाटा डिजीज, सीवियर अनकंट्रोलेबल ट्रीमर्स and loss of motor control, sensory loss affecting both auditory and visual senses, partial paralysis, loss of muscle control during voluntary movements known as ataxia, okay, and numbness in the extremities like the hands and feet, and speech impairment may also be observed। ये सब यहाँ पर इसका सिम्पटम्स थे। इसका सिम्पटम्स आप ना इसको पूरे नोट्स के रूप में अपने कॉपी में छाप लीजिएगा। ठीक है, इससे बेस्ट नोट्स आपको और नहीं मिल पाएंगे, इसलिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। ओके, ये जो है वो आप इसको पूरे अच्छे से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और आप इसे रिवाइज करते रहेंगे, याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा इसका है, इसका में लॉस ऑफ मसल कंट्रोल हो सकता है इसमें, जिसे अटैक्सिया के नाम से जान सकते हैं, और इंटरमिटीज लाइक हैंड्स एंड फीट्स, ये सब, और ये सब चीज़ें इसमें होते हैं। इसके बाद क्या है इसमें, अब इसका क्या है, मतलब इस चीज़ को रोकने का क्या उपाय है। ठीक है, कंट्रोल इसका क्या है उसको समझिए। कंट्रोल आप यहाँ पे ऊपर में लिख लेंगे, कंट्रोल ऑफ मिनीमाटा डिजीज। इसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग द सोर्स ऑफ एक्सपोजर सो एज टू प्रिवेंट द फॉर एनी फर्दर एक्सपोजर। सो यहाँ पर आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना सबसे बेस्ट तरीका था यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ इसमें मिनीमाटा डिजीज़ है, बस उसको आइसोलेट कर दीजिए, कहीं अलग पृथक कर दीजिए उसको। ठीक है, अलग कर देंगे तो फिर तो एक्सपोज नहीं होगा ना उससे दूसरे में। सो दिस इज़ ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप एंड इज़ इन मेनी वेज प्री रिक्विजिट टू ट्रीटमेंट। ये पूरे फर्स्ट स्टेप था यहाँ पर ट्रीटमेंट का। ठीक है, सो मरकरी इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द बॉडी एज इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज लेवल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन विच कैन बी काउंटर्ड थ्रू द यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और ये जो था, ये एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग से ना ये काउंटर किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस मिनीमाटा डिजीज़ के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझे हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।